نہیں پیر اسکانی صاحب سے پوچھیں گے، پہلے یہ تو بتائیں آپ نے یہ بات کہاں سے سنی ہے؟ بھائی پیر اسکانی صاحب سے بھی پوچھ لیں گے نا، پہلے آپ تو بتائیں آپ نے یہ بات کہاں پڑھی ہے، کس نے یہ آپ کو بات کہی ہے کہ ضعیف سچی بھی نکل سکتی؟ ہمارا جو طریقہ ہے وہ اور آپ کا طریقہ اپنا ذاتی میں نہیں پوچھ رہا، میں آپ کا اپنا ذاتی طریقہ نہیں پوچھ رہا۔ ہاں بہرحال میں جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، بھائی جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، میں نے آپ سے بحث اور نہیں کرنی اس معاملے میں، میں نے اس معاملے میں آپ سے اور بات نہیں کرنی۔ ائمہ محدثین جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، کیا ان میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ ضعیف سچی بھی ہو سکتی ہے؟ پیر اسکالی صاحب یہ سوال پتہ ہی کوئی نہیں ہے، روایت ضعیف کون سی ہوتی ہے، موضوع کون سی ہوتی ہے، غریب کون سی ہوتی ہے، صحیح کون سی ہوتی ہے، حسن کون سی ہوتی ہے، مرفوع کون سی ہوتی ہے، موقوف کون سی ہوتی ہے، مقطوع کون سی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ان کو۔ جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حدیث کا کوئی مطلب ہی کوئی نہیں، میرے الہام کے خلاف، آپ خاموش ہو جائیں، آپ سے میں بحث نہیں کر رہا، اور آپ کے علماء جو جہاں تک ہے کافی قدرے مشترک ہے، اور بھائی کچھ نہیں آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، جو مسلمانوں میں سے کس بندے نے یہ بات کہی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، جو حدیث ضعیف حدیث بھی ہونا اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس کو بھی مانو۔ یہ بات 14 صدیوں میں کسی مسلمان محدث نے، کسی امام نے، جنہوں نے اسماء و رجال وغیرہ کتب لکھی ہیں، کسی نے یہ اصول متعین کیا جو آپ پیش کر رہے ہو؟ ضعیف بھی سچی ہو سکتی ہے، قرآن کے مطابق حدیث نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں جو پہلے والی بات کر رہا ہوں، قرآن والی بھی پوچھ لیں گے، پہلے یہ بتاؤ ضعیف بھی سچی ہو سکتی ہے؟ بھائی چیخے نہ مارو یار، تم نے بد اخلاقی پہ شروع کر دی ہے، پیر اسکالی صاحب سے بات کرو۔ چلو جی، کون سی بات اخلاقی شروع کر دی ہے؟ ابھی بات اخلاقی اس کو یہ نہیں پتا، اس کو وہ نہیں پتا، تمہیں کیا پتا ہے؟ ابھی کتنی سی تم ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو جھوٹ بولا اس کا حوالہ دو۔ اور بھائی جھوٹ بولا چیخے مار کے بد اخلاقی، تو ہر دفعہ یہ ضعیف حدیث سچی ہو سکتی ہے، جب سے یہ عامر نذیر آیا ہے چیخے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، بدبخت قسم کا انسان ہے یہ، نہ اس کو اخلاق کا پتہ ہے نہ کچھ، جب پتہ نہیں گھر والوں کو بھی اس نے کیا اخلاق سکھائے ہوں گے، پکڑے جاتے ہو اور ایسے تمہارے جیسے تمہیں ویسے گھر بلاتا ہے، تم بات کر رہے ہو، تمہارے میں یہ بات اتنی پوچھ رہا ہوں، یہ کس دجال نے کہا ہے، یہ کس کذاب نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث بھی سچی ہو سکتی ہے؟ یہ بتاؤ، یہ میں بار بار پیر پوچھ رہا اسکالی ہوں۔ سے بے وقوف انسان، دماغی تمہارا خراب ہے کیا؟ کان کا مسئلہ کیا ہے؟ بے وقوف تمہارے منہ پہ انسان، کالم مال دی پھر لعنت بھیج دو گے مرزائیت پر؟ پھپی کتنی سی۔ میں ابھی پیر اسکانی صاحب کو بلا لیتا ہوں، اوکے جی، اللہ اگر حافظ۔ انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث سچی نہیں ہو سکتی، پھر کیا ان سے قرآن اور حدیث سے بات کریں؟ ضعیف حدیث بھی سچی ہو سکتی ہے، پہلا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، دوسرا معیار یہ ہے کہ جب وہ پوری ہو جائے پھر وہ سچی ہوتی ہے، بھلے وہ ضعیف بھی ہو۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے بالکل غلط، موضوع کا مطلب ہوتا ہے بالکل غلط۔ جہالت کا ایک بازار ہے، جو اس طرف بھی گرم ہے ہماری طرف بھی گرم ہے۔ چلو ہمارے تو یہ تو ڈسکس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے نا، ادھر جا کے دیکھو جنہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ ہم امام مہدی کی جماعت ہے، ان کی عقل دیکھو، ان کا علم دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عامر صاحب پھر آج گرم ہوئے ہیں، کی ہو گیا بھائی؟ پھر کی ہو گیا؟ ہر وقت گرمی ہے، نذیر صاحب، گرمی ہے، کی ہو گیا؟ نذیر صاحب آپ کو شام کو بلاتے رہے، بار بار پوچھتے رہے کہ نادر نے جو حدیث پیش کی ہے کیا یہ وہی حدیث ہے جو کہا تھا اس نے؟ حسن کے اس میں جو وہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اس میں حسن والی بات نہیں آ رہی حدیث میں؟ حدیث جو نادر نے کہی تھی، کیا یہ وہی حدیث اس نے پیش کی کل شام کو؟ جی، آپ کے سامنے آپ نے تو دونوں سنی ہے نا؟ جی آپ نے حسن سے کیا مراد؟ آپ نے تو دونوں سنی ہے نا؟ جی وہ حدیث جو وہ کہہ کے گیا تھا ہماری براڈ پہ، کیا اس نے وہی حدیث پیش کی؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں۔ عامر صاحب یہ سننا ذرا اس کے الفاظ، سننا ایک منٹ، مائک میوٹ کر کے الفاظ اس کے سن لیں۔ حسن کا مطلب صورت لفظوں کے معنی میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، اب آپ نے کام کرنا ہے، امت میں جس کا بھی
भी नाम हसन है ना, आपने हटवाना है फिर, ठीक है। उसकी वजह ये है, अब सुनना है आपने, मेरी बात सुनी है। उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो नाम ना रखो जिसमें तुम्हारी तारीफ हो। हसन का मतलब है खूबसूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नाम ना रखो जिसमें तुम्हारी तारीफ हो। यही बात कही ना? जी जी यही बात। ये 4953 नंबर अबू दाऊद की हदीस है। बिलाल भाई आप लगाना चाहें तो लगा दें। क्या ये वही हदीस है? 4953 अबू दाऊद। वो नाम ना रखो जिसमें तुम्हारी तारीफ हो। जरा चेक करना, ये वही हदीस है। यार आपको पता नहीं लग रहा कि हम झूठ बोल रहे हैं, लोगों के साथ धोखा करने को? दिन दिहाड़े धोखा करते पकड़े जाते हैं। तो वो हदीस रखी थी ना जिसमें तारीफ, जिस नाम में तारीफ आ रही हो, तो हैं? वही तो बात हो रही है। हसन का वो मतलब कहाँ है जो हदीस दूसरे- है? वो हदीस कहाँ पर है? जो आपको कल ये जो उन्होंने हदीस दिखाई है उनमें क्या था? तो भाई दूसरी जो हदीस- हदीसें दिखाई हैं हाँ, ये उनमें यही क्या- एक हदीस है। सुन लें हाँ जी। यही एक हदीस है जो हजरत ज़ैनब बिन्त अबू सलमा के बारे में है। वो कहते हैं कि ज़ैनब बिन्त अबू सलमा ने मुझसे पूछा कि तुमने अपनी बच्ची का क्या नाम रखा है? मैंने बताया कि बर्रा, उसका मानी होता है नेक, साले। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम से मना फरमाया। मेरा नाम बर्रा रखा गया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आप को अपने मुंह से नेक और साले ना कहलवाओ। अल्लाह तुम में से नेक और साले लोगों को खूब जानता है। जी जी क्योंकि नेक वो है जिसको अल्लाह जानता है कि ये नेक है। हम अपने मुंह से कैसे कह सकते हैं मैं नेक हूं? सही। नेकी का दावा ना करो, अपने आप को नेक ना कहो, यानी नेक होने का दावा ना करो। अपने नाम में ये नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा नेक हूं, क्योंकि नेकी सिर्फ अल्लाह जानता है ये नेक है या अनेक है। ठीक। ये सिर्फ बात है। इसमें तारीफ का कौन सा है? तारीफ तो हर नाम में पाई जाती है। जो ज़ैनब नाम रखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदल कर, ज़ैनब में तारीफ नहीं पाई जाती? ज़ैनब का क्या मतलब होता है? ज़ैनब में भी तो खूब वो तारीफ पाई जाती है ना। जी नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ऐसा नाम ना रखो जिसमें तारीफ पाई जाती हो। तमाम नामों में तारीफ पाई जाती होती है। और नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो बर्रा नाम बदल कर ज़ैनब रखा, तो ये भी ज़ैनब में भी तारीफ है। नबी पाक ने ये नहीं कहा कि तारीफ वाला नाम ना रखो, बल्कि ये कहा कि ऐसा नाम ना रखो जिसमें ये दावा हो कि मैं नेक हूं। बस इतनी सी बात है। इसका उससे क्या लेना देना? वो कह के क्या गया था और हदीस उसने कौन सी पेश की? ये क्या ना आमिर साहब, अभी आप इल्मी शख्सियत है ना, दोनों एक दूसरे को समझा ले। मैं तो यहाँ ये मैसेज देने आया हूँ कि कल जलसा सालाना है, तमाम दोस्त जुमे वाले दिन जलसा सालाना देखे, मैं आया भी 2 मिनट मंजर में। देखे, लंदन का जलसा सालाना देखे तमाम जिसने दोस्त। बादाम खाए हैं वो नज़ीरे से बात कर ले। मैं आया 2 मिनट। चले जज़ाकल्लाह। बहरहाल वो तमाम दोस्तों को ये मैसेज है कि कल जलसा सालाना लंदन शुरू हो रहा है। एक मंजर है, वो रूहानी मंजर है, वो तमाम दोस्त देखें। और सूरज मगरिब से निकल रहा है, उसका निशान भी देखें ये। और जमात अहमदिया की तरबियत और काम जो हो रहा है दुनिया में वो देखें। वो सारे ये लोग सिर्फ रूहानी देखें। होगा या जिस्मानी भी है? उसमें आप 72 में और 73 में तफरीक कर लेंगे, आप कल पता चल जाएगा। जो दोस्त देखेगा उससे पता चल जाएगा 72 और 73 चले की बात। अच्छा ऐसा है ना, अपना नजीर जी। साहब, वो मैं इधर प्ले करूंगा। अब्दुल बासित की दावत वहां से मुझे किसी का कोई कारी ला कर दे अपनी जमात से मद मुकाबला तलावत कर ले, बिल्कुल सुबह से उसके मद मुकाबला तलावत कर ले, तिलावत जाएगी। तो उससे क्या होगा भाई? तिलावत तो अच्छे कर कोई भी कर सकता है। मैंने क्या कहा है? कुरान का हुक्म है, कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है। पढ़ लेते हैं खलीफा साहब तरतील से। वो कल जलसे में तिलावत होगी तो सुन लेना ना भाई। मैंने कहा ना कि मैं इधर से प्ले करूंगा, आप वहां पर खलीफा से कहेंगे कि ये बताए जरा। वो मैं कह रहा हूँ कल जलसे में तिलावत होगी तमाम दोस्तों में मेरे भाई। तिलावत भी होगी, नज़म भी होगी, तकारीर भी होंगे, कुरान भी पेश किया जाए, हदीस भी पेश की जाएगी, सारी बातें होंगी। कल दोस्त ये देख हदीस एक तो आपके सामने खलीफा साहब ने पेश की थी, उसका तो पोस्टमार्टम हुआ पड़ा है। ज़ईफ हदीस कितनी ज़ईफ हदीसें पेश करेंगे?
भाई मैं वैसे चले कल जलसा देखोगे तो फिर मैंने बात पहले होगी पढ़े मेरे हुए भाई। हैं फजल के जलसे, हाथ पड़े हुए हैं मैंने जलसों के। नहीं नहीं, कल लाइव देखना, पूरी दुनिया देखेगी लाइव मेरे भाई, बहुत मंजर है, नहीं, बड़ा जुम्मे का खुतबा हम जबरदस्त। देखते रहते हैं ना, जुम्मे का खुतबा देखते रहते हैं ना, एक आयत हाँ पूरी हाँ, सीधी वो भी नहीं है, पढ़ सकता आपका खलीफा। वो भी है, एक कोई आयत में बात 6 गलतियां होती नहीं, हैं, वो पढ़ एक लेते हैं, लफ्ज में पढ़ 2 लेते हैं, गलतियां होती सब कुछ पढ़ लेते हैं। हैं भाई, 2 गलतियां जज़ाकल्लाह, एक मैं लफ्ज दोबारा हो आता हूँ, जाती मैं हैं। थोड़ा मसरूफ हूँ, फिर बात खलीफा को करते किसी हैं कारी के दोबारा। पास भेजें, मेरा मशवरा है आपको, खलीफा को किसी कारी के पास भेजें अच्छा, तो 4 साल कल उसको देख मुर्गा बना लेना दें, मेरे कुरान भाई, पढ़ाए, उसको कल समझाए कुरान सारे कैसे पढ़ा दोस्त देख, जाता है। सारे दोस्त जलसा मैंने क्या देखेंगे, कहा सब है, मंजर नजर आएंगे, लाइव आएगा सब कुछ। मैंने क्या कहा है, खलीफा को किसी कारी के पास भेजें, वो उसको मुर्गा बनाए, 10 किलो वजन उसकी पीठ पर रखकर उसे कुरान याद कराए, उसको पता हो कि मैंने कुरान ऐसे पढ़ना है। नहीं, आपके हजारों लाखों करोड़ मुसलमानों को, करोड़ों मुसलमान को कुरान पढ़ना नहीं आता, वो मुसलमान नहीं है, वो भाई भी खलीफा भी तो नहीं है ना, वो खलीफा भी नहीं नहीं है। है, आपकी आप बात, उनको वो खलीफा खलीफा बना भी दें नहीं है। यार। चलो 1 मिनट मैं मसरूफ हो रहा हूँ, फिर बात करते हैं, जज़ाकल्लाह। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, अगर ये आपका क्राइटेरिया और मयार है, फिर उनको खलीफा बनाए यार, जिनको अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, ताजू। जी जी हेलो। जी जी। जी, ये रिवायत के आगे बहस हुई है। यार आपकी आवाज बहुत कम है बिलाल भाई, आप माइक दुरुस्त करें या हैंड फ्री चेंज करें। अब आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। अच्छा, मैंने कहा ये जिस पे आगे ट्रूथ सीकर साहब बहस करके गए हैं, ये रवायत मैंने कही है, ये रवायत तो मिर्ज़ा साहब ये कैसे सही हो सकती है इनके नज़दीक? ये तो लिखा हुआ है मेरे अहले बैत के एक आदमी को देंगे, ये तो इमाम महदी वो वाले हैं, हज़रत फातिमा वाले, ये तो वो वाले इमाम महदी हैं। ये रवायत देख लें। और मिर्जा साहब का दावा है कि मैं वो मैदी हूँ ही नहीं, ये उस पर फिट ही नहीं हो सकती, हाँ, ज़ईफ़ मैं भी वही होता भी देख फिट रहा नहीं हूँ होता। एक घंटे से। ये तो रवायत में जो लिखा हुआ है, ये तो वही इमाम महदी है, मेरे अहले बैत के एक आदमी को देकर वो ज़मीन को इंसाफ हो और इस तरह देगा जिस तरह, ये तो हज़रत फातिमा वाला इमाम महदी है। इसके बारे में तो मेरे साहब पता भाई नहीं, जो मैंने रवायत लगाई हुई है, इस रवायत को किस तरह पेश करते हैं? क्या लिखा है कि इंसाफ से भर देगा? ये मैंने रवायत लगाई है ना बर्फ के सिलों वाली, तो ये लिखा हुआ है जी जी। कि तब जो कुछ उन्होंने मांगा था उन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे हत्ता कि वो इस हुकूमती इंतज़ाम को मेरे अहले बैत के एक आदमी को दे देंगे। चनाचा वो ज़मीन को इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह लोगों ने उसे जुल्म से भर रखा था। तुम में से जो इन हालात को पाले उसे चाहिए कि इस महदी के पास आए, अगरचे बर्फ़ पर फिसल कर आना पड़े। तो ये तो फातिमा वाला ये है। हुकूमती निज़ाम तो मिर्जा साहब को मिला ही नहीं है ना, इनकी तो घर में हुकूमत नहीं थी, वो तो अखबारों में इनके लिखा हुआ है, मिर्जा साहब के बारे में मशहूर है, बूढ़ी को बड़ा डरता है, बूढ़ी से थले लगा है, ये बात इनके अखबारों में लिखी हुई है। बीवी इसको ताने दिया करती थी, ये तो मैं आई है तो तेरे घर रोटी लग भी, पहले तू भुखा मरना है, ये तो नुसरत जहाँ सत्ता नहीं देनी, मिर्जा का देनी है। ये घर हुकूमत नहीं, बाहर की केड़ी है देखो नहीं। लेकिन ये वेख लो भाई उस डकवान केड़ा मारिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी चीज़ का नहीं पता ना, ना हदीस दे मोटियां मोटियां ये गल्लां वो भी नहीं पता, ज़ईफ़ हदीस के सा आखने वो केड़े शरायत उत्ते ना पूरी उतरे तो ज़ईफ़ आख्या विना, हसन के सा आख्या विना, हसन लगायरी के सा आख्या विना, इन्हां चीज़ां का ना इल्म ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। अबू राफे भाई कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। ये हमेशा कहते हैं उसूल बनाया हुआ कि हम हदीस वो लेते हैं जो कुरान की मुखालिफ ना हो, तो ये हदीस तो नुज़ूल ईसा की कुरान के मुखालिफ हुई ना, क्योंकि इनके मुताबिक कुरान कहता है कि ईसा फौत हो गए और हदीस कहते हैं कि ईसा नाजिल होंगे, तो फिर ये तो हदीस नाकाबिल कबूल है बकौल इनके। मगर उसको फिर वो घुमा फिरा के मिर्ज़ा भी फिट करते हैं, तो इनका है क्या मयार? कुछ भी नहीं है। जब ये कहते हैं कि हमारे नज़दीक हम, अरे तुम हो कौन यार?
किसी बंदे ने अगर मुबैस लुधियाना पढ़ा हो ना तो उसमें शेख बटाली रहमुल्लाह का सवाल ही एक ही था मिर्ज़ा कादियानी से कि बताओ मुहद्दिसीन ने जो हदीस पर जरा की है और उन पर हुक्म लगाए हैं वो तुम्हारे लिए हुज्जत हैं या नहीं है। अच्छा हाँ, क्या था उसका ये जवाब? सवाल था वहाँ पर, उसका जवाब यही जवाब था, वो हदीस जो कुरान से ना टकराए हम उसे मानते हैं। उन्होंने कहा मेरा ये सवाल ही नहीं, ये तो सवाल होगा रवायत पर, मेरा सवाल है दरायत पर है जी। उस पर जो मुहद्दिसीन ने हुक्म लगाए हैं ना, आपकी बात है मतन पर, मेरा सवाल है उसकी सनद पर। उस पर जो मुहद्दिसीन ने हुक्म लगाए हैं वो आपके नज़दीक हुज्जत है या नहीं है। कुरान तो कारी ठहरेगा मतन पर ना। कुरान तो कारी हकम ठहरता है मतन पर, सनद पर तो कुरान तो हकम नहीं ठहरता। रावियों के बाल तो मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, उनका ज़ोफ, उनका सिका होना ये तो मुहद्दिसीन ने बयान किया है। और ट्रुथ सीकर पुत्र है तेरा गुरु कृष्ण का ध्यान एडा पढ़िया लिखा होंदा ना ते शेख बटालवी दे पैरां 'च बह के ना ते गल ना कहंदा कि आपका जिक्र इल्म हदीस बहुत वसी है, मैं तो अनपढ़ जाहिल बंदा हूँ। उन्होंने पढ़ाना सी तू ये जा पहले उन्होंने पढ़ा जड़ा ये गल कहंदा सी शेख बटालवी दे पैरां 'च बह के। बस ये कि उस वक्त तवहम परस्त मुसलमान जो है इसके चक्कर में फंस गए, अनपढ़ लोग, कोई इल्म नहीं, जहालत थी जिस तरह आज भी जहालत है। कई जेली पीरों के घोड़े के साथ बैठे होते हैं। हाँ, तो और दूसरे जो इसने सबसे बड़ा काम जेली पीरों के घोड़ों के साथ थोड़े बैठे हुए। हाँ, सबसे बड़ा जो इसने काम किया वहाँ पे मेहमान खाना चलाया ना, लंगर। तो एक वक्त की रोटी अगर किसी को मुफ्त में मिल जाए उन दिनों पे तो बड़ी बात थी, चारा ने किसी को मिल जाए। ये तो जहालत है। अब देखे कोई बंदा नंगी बात करता है तो उसको बुरा कहते हैं, कोई नंगा फिर रहा हो तो वो बाबा बन जाता है। हाँ वही है ना। वो अब्दुल ये मजीद, जहालत नहीं तो क्या है। अब्दुल मजीद नदीम शाह की एक तकरीर सुनी तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ये है कि आधा नंगा आधा वली, पूरा नंगा पूरा वली। तो बस वही हिसाब है, पहुंचा हुआ शख्स होता है वो। ये हालत उससे भी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई बंदा नंगी गाली दे तो वो गलत है, कोई खुद नंगा फिर रहा हो तो वो बाबा बन जाता है। हाँ, अब जहालत इसी का नाम है और किसका नाम है। हाँ वही बिल्कुल। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि लाहौर में कोई बाबा, वो भी ऐसे आधा नंगा बैठा हुआ है और वो बुला के धमाल डाल रहे हैं, बुला के किसी को कान में कह रहा है, फिर वो ऐलान कर रहा है कि बाबा जी कह रहे हैं कि जो धमाल नहीं डाल रहा है उसकी माँ को ऐसा, उसकी बहन को ऐसा, उसकी। और लोग जो है फिर वो नारे लगा रहे हैं, पीर साहब जिंदाबाद। वो वीडियो मैंने भी देखी है। हाँ तो नंगी गाली दे रहा है ना, बिल्कुल माँ बहन एक कर रहा है उनकी। हाँ बिल्कुल। चलो वो तो पागल सा मुझे लगता है न, तो लोग उसके पीछे चल रहे भाई साहब। सरगोधा में एक पीर को इन्होंने पकड़ा था जिसने तकरीबन 21 आदमियों को कत्ल करवाया था, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। उसने कहा उनको कि अपनी गर्दन पर जो है बेरूपिये बैठे हुए हैं, अपना मलक इमरान बड़े बड़े बेरूपिये बैठे हुए हैं। ओना नहीं भाई, हो सके अपनी गर्दन भाई दूसरी जहालत ये पाई जाती है ना, सुने ना बात सुने, दूसरी जहालत ये पाई जाती है कि किसी पर अल्लाह ताला का करम हुआ है, किसी बंदे पर, उससे कोई बात ज़ाहिर हो गई है, पीछे उसकी नस्ल भले ज्वारी शराबी हो, वो भी उसी रुतबे में लिख रहे हैं ये लोग। नहीं भाई, सियाल शरीफ वेख ले हो, उन्हांदे हो जेड़े हैं जेड़े नहीं है ना, वो हुण पिछू सब कुछ करन, जनाई होन, शराबी होन, ओडरी होन, लेकिन वो लोग उन्होंने रिस्पेक्ट करदा। दरबार तो नारा लगता है झूले लाल फड़े गए तो अगली गल फिर समझ में जो लालो लाल। सर जी केड़ियां बहसां हो रही थे?
गल्ला बात हो रही, बस नहीं हो रही ਉਹ भाई। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਜਹਾਲਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। हाँ मलिक इमरान भाई वो सरगोदा वाले पीर को बता रहे थे। आप कहवे कि लोग क्यों करो ला अपनी जहालत की वजह से। हाँ मलिक इमरान किसने क्या धोखा दिया था उसने लोगों को? जिस तरह डब्बा पीरा दे गैद मरीजां दा जमट लगा हुआ है। क्या पूछा आपने अबू राफे भाई? नहीं मलिक इमरान साहब बता रहे थे ना सरगोदा के कोई पीर किस चक्कर में फंसाया था उसने लोगों को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक राजा तो तू जुल्फकार हो। बाबा जी कहते ने जरा नारा ना मारे ओदी मां दी। हाँ वो सुने थे काफी अर्सा पहले। बाबा जी कहते ने जरा नारा ना मारे ओदी भैन दी। हाँ वही इस तरह कुछ कह रहा था। ये बाबा जी लाहौर से डरे थे ने। वो जिंदा है या मर गया? नीम मान साहब दसो ना के टॉपिक है इधर के गल चल रही है। दस्या तो है ਤੁਹਾਨੂੰ जी कि लोग जाहिल पीरां दे पैरोकार क्यों हो जाते ने। और दूसरी बात जो इसकी वजूहत हाँ आमतौर पर जो मिर्ज़ा कादियानी ने फंसाया कि कशफ देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, इसमें फिर लोग जो है ना वो गिरविदा हो जाते हैं। तो मैं हैदराबाद में ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੰਗੀ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पहुंचा बाबा। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਪੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यही चक्कर है ना। तो हिंदुओं में यही है ना। कल ही किसी ने व्हाट्सएप पे वीडियो लगाई थी। मैं सियासत गया अपनी फुफे के घर तो उन्होंने जो पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਨਾਂਗਾ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 95% ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੋ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰੋ ਦਫਾ ਆ ਜਾਓ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਣਾ ਇੱਕ ਥਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਸਹਿ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਲਾਤ ਦੀ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਪਰੋ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚਾਂ। ठीक है वक़्त गुजरा खुदा नहीं करनी 5-7 साल बाद खुदा से पुत्र चाह देता मनो तुसा अपनी याद ही चली की दरबार ते नचे ते ना जाको चाहे इस झोली जे आखे ये सकी सरवर देता है जड़ा है मने जे ख्यालात ना उसना ओ खलता है पासे हट के चढ़ा सा रो पहले करना है इशारा उसकी याद ना होवे यार ओ फिर इशारा करना है आपे दई ना होवे यार ए ना होवे यार ओ ते ना होवे यार ए सकी सरवर देवे यार के समझ आई जे गला दी वो आ रहा भी ना हो वेर ओ ते ना हो वेर ए सखी सरवर दे वेर के देने ली रब दी जात है ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ यकीन दे बेड़े पार होंदे ने यकीन लोग रखदे ने नहीं गलत गल जे ओए हिंदुआं दा यकीन है बुतां दे उन्हां दे बेड़े पार ने नहीं यार अल्लाह ही हर एक नु देंदा है ना मैं तो ये ना जदा अल्लाह ताला इंसान तखलीक करेंदा है ना ओदा सब कुछ उस दे नाल अल्लाह सुभान व तआला लिख देंदा है
ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਮ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਦੁਆ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਓ ਦੁਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਣਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਆ ਨਾ ਆਖਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਆ ਨਾ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ लेकिन बंदे का काम हो ना तो बंदा यकीन कर ले कि उस बंदे दुआ की थी ता मना काम हुआ ये गल गलत है नहीं भाई दुआ के लिए वही उलमा कहते हैं ना कि जिसको सलाह और तकवा नजर आए उसके लिए उसको आप दुआ के लिए हाँ जो बंदा पाबंद शरीयत बंदे को नजर आए बाकी एक बैठा हुआ नंगा उसमें खिलाफ शरीयत बैठा है ये तो जिस्म दे उते खुद उते कपड़े नहीं नुस्वान के देना हाँ वही है ना मसला ये है ना हमारे यहाँ जहालत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई बहुत बड़े मुरब्बी हमारे आए हुए हैं टाक मास्टर जी उनसे बात कीजिए पीर टाक साहब मास्टर जी खुशामदीद जी शुक्रिया पीर साहब कह रहे हैं कि आधा नंगा आधा वाली पूरा नंगा पूरा वाली पूरा पीर साहब तो असकानी भी आपका क्या हाल है उम्मीद है कि आप ठीक होंगे बहरहाल मुझे तो फिलहाल सवाल जो आपका जो है ना अभी मूड नहीं बना जी वजह अभी मैं तेल और तेल की धार देखूंगा चले कोई मसला नहीं देखते रहिए फिर इंशाल्लाह जब टॉक मास्टर साहब हमारा ये मौजू है कि जहालत बहुत है यही इसी का फ़ायदा मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी ने लिया जाहिल लोगों को जो है ना गुमराह किया कि मेरे ख्वाब में ये देखा कश्फ में अल्लाह ताला को देखा तो लोग गिरविदा हो गए और दूसरा जो हथियार उसने बहुत बड़ा चलाया वहाँ पे मेहमान खाना चलाया लंगर एक ही टाइम एक दफ़ा किसी को सब खाना मिल जाता तो बड़ी बात थी तो इस पे लोग जो है फिर मिर्ज़ा साहब कुछ भी हो जिंदाबाद तो बात ये है ये दो बातें जो है ना उन्होंने की बात ये अभी रफ़ी भाई अबू रफ़ी भाई सॉरी जी बात ये है कि अगर जाहिलियत ख़त्म हो जाएगी ना तो मज़ाहिब भी ख़त्म हो जाएंगे अच्छा। ये इसके बगैर चल नहीं सकते हाँ सही बात है हाँ कहीं ना कहीं जब आप किसी को जाहिल कहते हैं ना तो कहीं न कहीं वो आपको भी नज़र आ जाएगी अगर आप अपने अंदर देखेंगे जी हाँ तो बुराई और जहालत अलग है दो चीज़ें हैं ठीक है ना मैं सिर्फ जहालत की बात कर रहा हूँ हाँ जहालत खास तौर पे अकीदे में जो है ना आदमी अब पूरा एक नंगा बैठा और उसको जो इसमें ये अकीदा बना ले कि ये पहुंचा हुआ शख्स है और मेरी मुरादें पूरी करेगा तो ये है जहालत हाँ ये तो है हाँ समझे तो असकानी भाई मैं आजकल सोच रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं किसी का इनकारी बनूं तो जो भी अपना मामूर मिन अल्लाह होने का दावा करता है उसको मानता जाऊं ताकि मैं इनकार करने वाला ना कहलाऊं तो इस सिलसिले में मैं आजकल जंबा साहब को देख रहा हूँ इधर आने से पहले मैंने क्योंकि मेरे पास वही बचते हैं बाकी के जिन्होंने दावा किया है नहीं तो तारिक चौहान साहब का असर आ गया आपने हाँ मैंने उनकी हाँ जी मैंने उनकी वो देखी है वीडियो भी देखी है एक खुतबा जो उनका देखा है और उनकी साइट देखी है और उनका वो जो चेहरा मुबारक है वो देखा है अभी तारक भाई आ जाए तो मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने वो टिपिकल दाढ़ी क्यों नहीं रखी जो अमूमन मजहबी लोग रखते हैं तो उनका भी पता करना तो मुझे अप्रिशिएट कीजिए असकानी भाई कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि अगर कोई मामूर मिन अल्लाह हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो बहुत अच्छे मामूर मिन अल्लाह को आप मानेंगे हाँ तो अच्छी बात है चौहान साहब को बुला लेते हैं आप देख लीजिए पूछ लीजिए वो तो इतना बड़ा मामूर बिन अल्लाह है दीवारें भी हवाएं भी दरख्त सब बात करते हैं उनसे भाई आप डायरेक्ट बात कीजिए ना टेलीफोन नंबर मुझसे ले लीजिए
नहीं, अभी मैं इस काबिल नहीं समझता अपने आप को कि मैं डायरेक्ट बात करूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बात करूंगा तो वही कुछ मुझे मिलेगा जो उनकी साइट पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे उनकी साइट ही काफ़ी है। हाँ, अगर मुझे कोई क्यूरी यानी कोई सवाल मेरा उठता है तो मैं फिर जाहिर है कि उनसे बात करूंगा कि भाई इस के बारे में आप क्या कहते हैं। तो असकानी भाई देखे ना, बंदे को अपने आप को बहुत बड़ा और बड़ा क्या कहते हैं अक्लमंद नहीं समझना चाहिए। इसलिए जो भी मामूर मिन अल्लाह का दावा करता है